हालेलुया। Praise the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। Today we are going to see a wonderful story in the life of Jesus Christ. और आज हम यीशु मसीह के जीवन से एक बहुत ही अद्भुत कहानी को देखेंगे। When Jesus walked on the face of the earth, और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे he did many signs and wonders. और उन्होंने बहुत से अद्भुत चिन्ह और चमत्कार There were किए a lot of miracles happening in his ministry. और उनकी सेवकाई में हम बहुत से चमत्कारों को देखते हैं। Today we are going to see a wonderful thing about the ministry of Jesus. और आज हम यीशु की सेवकाई से एक बहुत ही अद्भुत बात को देखेंगे, Especially how he fed the 5,000 people. और कैसे उन्होंने 5,000 लोगों को खाना खिलाया। Hallelujah. हालेलुया। Let us go into the word of God. और आए अब हम वचन में चलते हैं There were 5,000 people. और हम men. देखते हैं कि वहाँ पे 5,000 आदमी He थे said to his disciples, make them sit in a row. और उसने अपने चेलों से कहा कि इन्हें जो लाइनों में बिठा दीजिए। They sat, all of them sat in a row of 50. और वो जो 50-50 की लाइनों में बैठ गए He took the 5 loaves of bread और उन्होंने 5 रोटियों को लिया and 2 fishes, और 2 मछलियों को लिया and he lifted up it to heaven, और उन्होंने उसे स्वर्ग की ओर उठाया and he praised God, और परमेश्वर की महिमा and he की broke the bread और उन्होंने रोटी को तोड़ा and gave it to his disciples. और अपने चेलों को दिया And he asked the disciple to distribute it to the people. और अपने चेलों से कहा कि इस रोटी को लोगों में बांट दें। All of them ate well. और उन्होंने सब ने अच्छे से खाया। Afterwards, the disciples picked 12 baskets full of fishes and loaves. और फिर हम देखते हैं कि बची हुई रोटी और मछलियों से 12 टोकरे इकट्ठे किए गए। Now I want you to pretend और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ as if you are one of the disciples. और जैसे कि आप भी एक चेले हैं I want to take you to the story. और मैं आपको इस कहानी में ले जाना चाहता हूँ We know to bring it up to this time, to the present time. और इस समय हम इसे देखते हैं। Think about you. You were in the midst of the meeting. और आप सोचिए कि आप भी उस समय उस सभा में थे And pretend that you are one of the disciple. और सोचिए कि आप भी एक शिष्य थे And this was happening in front of you. और ये सारी बातें आपके सामने घट रही हैं। So, इसलिए you are one of the 12 disciples. और आप भी उन 12 चेलों में से एक हैं You have Jesus as the evangelist. और आपके पास यीशु मसीह है And there is a great meeting going around you. और आपके आसपास एक महान सभा चल रही है He is doing a great teaching. और वो अच्छी जो महान शिक्षा दे रहा And है there is a great preaching going on. और वहाँ पे जो प्रचार हो रहा है You advertise and there is a very large crowd. और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है You have a crowd of 15,000 to 20,000 people. और आप सोच सकते हैं वहाँ पे 50,000 से लेकर 20,000 तक लोग इकट्ठे I want थे। you to notice this. और मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों को लिख लीजिए। The day began to wear away. The day began to get late in the evening. और जब वहाँ पे हम देखते हैं कि शाम ढलने को आती है Think about it. You have the biggest crowd. और सोचिए कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी भीड़ है। It is starting from 10 o'clock and it is going up till 5 o'clock in the evening. और सोचिए ये सुबह 10 बजे शुरू हुई और शाम के 5 बजे तक चल रही He है is still preaching the word. और अभी तक वो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे You हैं get so tired और वहाँ पे आप बहुत ही थक जाते हैं and you tell the Lord, और आप परमेश्वर से कहते हैं don't you think we have to leave the meeting? और आप कहते हैं कि क्या अब हमें इस सभा को खत्म नहीं कर देना The whole चाहिए day has passed away और पूरा दिन बीत चुका है and it is getting late in the evening. और शाम ढलने को हुई है We form a committee. और हम एक सभा बुलाते हैं The disciples must be and you are in one of the committee members. और आप उस सभा के एक मेंबर होंगे And there is a lot of unbelief going on. और वहाँ पे जो अंधविश्वास है Jesus is still preaching the word. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह लगातार प्रचार कर रहे हैं And the disciples are wondering when Jesus is going to stop. और जो चेले हैं वो हैरान होते हैं कि कब यीशु मसीह से खत्म करेंगे And they tell Jesus that the people are very tired. और वो कहते हैं कि लोग थक चुके हैं And Jesus
said to the disciples, ask them to sit in a row. और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि लोगों को कहिए को कि वो लाइनों में बैठ जाएं And he said, give them something to eat. और उन्हें कुछ खाने के लिए दीजिए Put yourself in that place. और आप अपने आप को उस जगह में रखिए। Jesus says something, give them something to eat. और यीशु मसीह कहते हैं चेलों से कि लोगों को कुछ खाने के लिए दीजिए। Just imagine what you would do. और कल्पना कीजिए कि आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं Use your imagination और अपनी कल्पना का उपयोग कीजिए and you figure it out for yourself. और अपने आप को उस जगह में रख के देखिए। Here the thing I want to watch. और यहाँ पे मैं ये बातें देखना चाहता हूँ। Here Jesus took the bread and he blessed and he broke it. और यीशु मसीह ने यहाँ पे रोटी को लिया, उसे आशीष दी और उसे तोड़ा। Now you think you have the piece of bread in your hand. और अब आप सोचें कि आपके हाथ में रोटी का एक टुकड़ा है। Yes, because Jesus has lifted it up to heaven and he broke it and he gave it to you. क्योंकि यीशु मसीह ने उस रोटी को स्वर्ग की ओर उठाया, उसे तोड़ा और आपको दिया And he gave it to you. और उसे आपको दिया गया। And he told you to go and distribute to और people. उसने आपसे कहा कि जाकर इसे लोगों में बांट दिए। What do you have in your hand? आपके हाथ में अब क्या है? You have a broken piece of the bread. आपके पास रोटी का एक छोटा टुकड़ा है। But Jesus said, go and give it to the people. यीशु ने कहा कि जाकर इसे लोगों को दें। The loaf doesn't get bigger, but it gets smaller. और यहाँ पे हम देखते हैं कि रोटी जो बहुत बड़ी नहीं, वो एक छोटा टुकड़ा है। And Jesus says, go and give it to them. और यीशु ने कहा जाइए और इसे लोगों को दीजिए। And Jesus said, told them, look, don't look at me, go and give it to them. और यीशु ने चेलों से कहा कि मेरी ओर मत देखिए, जाइए और इसे बांटिए। So you have to follow his commandments. और आपको यीशु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। The first principle we have to see is they first gave the bread and the fish to the Lord. और सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने रोटी और मछली को परमेश्वर के हाथ में दिया The Lord blessed it और परमेश्वर ने उसे आशीष दी and he passed it to the disciples. और उसे जो चेलों को दिया। The first thing is the first thing you have to do is to first give it away. और पहली जो बात आपको करनी है वो है आपको देना। That took a lot of faith और ये जो बड़े विश्वास को दिखाता है। because the disciples saw only a broken bread in their hands. और जो चेलों ने अपने हाथ में रोटी के एक छोटे टुकड़े को देखा And you go to the first person और उसने कहा कि तुम पहले व्यक्ति के पास जाओ and go and give it to them. और उसे जाकर ये टुकड़ा दो। You see the small bread in your hand आप अपने हाथ में एक छोटे टुकड़े को देखते हैं and you're seeing how it is going to feed the 5,000. और आप सोचते हैं कि इससे 5,000 लोगों को कैसे खिलाया जा So you सकता go to है। the first person and say, take a little bit of it. और आप पहले व्यक्ति के पास जाएं और उसे कहें इसमें से थोड़ा ले लीजिए। And as you give it to them, और जैसे आप उन्हें देते हैं it keeps growing and growing and growing. और ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। And it goes to the last person और जैसे ये अंतिम व्यक्ति के पास जाती है and the bread grows in your hands. और ये जो रोटी है आपके हाथ में बढ़ जाती है It goes to the next person, to the next person, to the next person. और इस प्रकार से ये एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से नेक्स्ट और इसी तरह बढ़ती है। It doesn't get over. और ये खत्म नहीं होती It gets bigger and bigger and bigger. और ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। You should understand और आपको यहाँ पे समझना होगा the miracle did not happen in the hands of the master. और ये जो चमत्कार है ये केवल जो मालिक के हाथ में ही नहीं होता, It happened in the hands of the disciples. लेकिन ये चेलों के हाथ में भी होता है। Jesus did not multiply it until it was blessed. और यीशु मसीह ने तब तक उसे बहुगुणित नहीं किया जब तक उसे आशीष नहीं दी। Unless it is given away, it cannot be multiplied. और जब तक इसे बाहर नहीं बांटा गया तब तक ये बहुगुणा नहीं हुई। First, it must be given to the Lord. और पहले है कि परमेश्वर को देना It has to be blessed और फिर है कि उसको ऊपर आशीष आना before it is multiplied. और बहुगुणित होने से पहले It has to be given. इसे दिया जाना होगा। This is the way it is multiplied. और यही कारण है कि वो बहुगुणा हुई। Everything should be given to God. और ये सबसे पहले
पहले परमेश्वर को देना चाहिए। Many people never see their finances being blessed और बहुत से लोग अपने आर्थिक जो उन्नति को नहीं देख पाते because they do not give it to the Lord's hands. क्योंकि वो परमेश्वर के हाथों में उसे नहीं देते। The first portion always belongs to God. और जो पहला फल है वो हमेशा परमेश्वर के साथ संबंध रखता है। That is why people say, और इसीलिए लोग कहते हैं I have given everything to God, मैंने सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दे दिया, but it is not multiplied लेकिन ये बहुगुणा नहीं हुआ because they have not given the first thing to God. क्योंकि उन्होंने अपना पहला फल परमेश्वर को नहीं दिया। Because they have not given the first thing to God, क्योंकि उन्होंने पहली चीज को परमेश्वर को नहीं दिया, it is not multiplied. इसीलिए वो बहुगुणित नहीं The हुई। principle is, और जो सिद्धांत ये है, first thing first should be given to God. और जो सबसे पहली चीज है वो परमेश्वर को दी जानी चाहिए। That is why I tell everybody. और इसीलिए मैं हर एक से कहता That is हूँ, why I teach my church, in my people in my church, इसीलिए मैं अपनी कलीसिया में और अपने लोगों को ये सिखाता हूँ that the first portion always belongs to God. कि पहला भाग परमेश्वर से संबंध रखता है। Unless you give it to the Lord first, और जब तक पहले आप परमेश्वर को नहीं देते it is not blessed. तब तक ये आशीषित नहीं होगा। The first portion has the ability to bless the rest of the things. और जो पहले भाग का आशीषित होना ही दूसरी चीजों को बहुगुणित करता है। You give it to the Lord who is the owner, और जो परमेश्वर को पहले देता है, because first thing belongs to him. क्योंकि पहली बात परमेश्वर से संबंध रखती है, So the first thing always belongs to God. और हर एक पहले भाग परमेश्वर के साथ संबंध रखता And है। the second principle, और जो दूसरा सिद्धांत है, after it is blessed, और जो आशीषित होने के बाद में it has to be given away. और उसे दिया जाना चाहिए। If you want multiplication in your life, और यदि आप अपने जीवन में बहुतायत को बहुगुणित को चाहते हैं, if you want to see multiplication happening in your life, और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चीजें बहुगुणित हो, तो you have to give it away. आपको उन्हें देना होगा। Then तभी God will be able to bless you abundantly over and above everything else. और तभी परमेश्वर आपको हर चीज में आशीष दे सकता है बहुतायत से। Not only that, और केवल यही we नहीं, have to give more above and over everything else to God. और आपको ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को देना चाहिए। Yes, we have to give to the street children. और आपको जो गलियों में बच्चे हैं उनको भी देना We have to चाहिए। give to the church building. और आपको जो कलीसिया के निर्माण के लिए भी देना We have to चाहिए। give to the missionaries. और आपको जो सेवकाई के लिए भी देना चाहिए। We have to give more and above your tithing in your life. और जो आप दशमांश देते हैं उससे बढ़कर आपको देना चाहिए। Because when you give the offering, it will multiply in your life. क्योंकि जब आप अपने भेंटों को देते हैं तो परमेश्वर उन्हें बहुगुणित करते हैं। If the disciples had not done the two things, और यदि जो चेले दो बातों को ना करते, if they had not given it away, और यदि वो उसे ना बांटते, nor have they given it to the Lord, और यदि वो परमेश्वर को ना देते, there would not be a multiplication, there would not have been a growth. और वहाँ पे वो बहुगुणित को और जो उन्नति को ना देख पाते। If they give everything to God, और यदि वो सारी चीजों को परमेश्वर को देते हैं, God is able to bless you. और परमेश्वर योग्य होता है कि वो उसे आशीषित कर सके। Recently, और हाल ही में a Muslim person, We cannot you cannot say that. No. You can say a poor person, a person. Yes. Recently, a poor person, और हाल ही में एक गरीब आदमी ने, he came to my wife. और वो मेरी पत्नी के पास आया, He said, my kidney is not functioning properly. और उसने कहा कि जो मेरी किडनी है वो अच्छी रीति से काम नहीं कर रही, I have to do dialysis. और मुझे जो डायलिसिस करवाना I है, do not have money. और मेरे पास पैसे की कमी है, Can you help me? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? My wife asked me whether we can give him 10,000 rupees. और मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा क्या हम उसे 10,000 दे सकते हैं? I felt compassion for that poor person और मुझे उस व्यक्ति के ऊपर तरस आया, and I told her to give him 10,000 rupees. और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि आप उसे 10,000 दे दीजिए। Look at the principle.
और यहाँ पे आप सिद्धांत को देखिए, We blessed and we gave that money to that poor person. और हमने आशीष किया और उस व्यक्ति को पैसे दिया, And the very next day, और अगले ही दिन में God gave us 1,25,000. और परमेश्वर ने हमें 1,20,000 से आशीष How दी। did it happen? और कैसे हुआ ये? When we gave it to the Lord. और जब हमने उस व्यक्ति को दिया, Because when you give it to the poor person, you give it to the Lord. और जब आपने किसी की मदद की तो आपने परमेश्वर को दिया, So God multiplied it in our life. और परमेश्वर ने हमारे जीवन में उसे बहुगुणित If you किया। want to see multiplication in your life, और यदि आप अपने जीवन में बहुगुणित को देखना चाहती हैं, God can do it if you give everything to Him. और परमेश्वर ये कर सकता है यदि आप सब कुछ उसके हाथों में सौंप दें। There are 3 types of giving. और 3 तरह का देना हम देख सकते हैं। One is tithing, और पहला है जो दशमांश देना, second is offering, और दूसरा है जो अपनी भेंटों को देना, 3 is extravagant giving. और जो तीसरा हम देखते हैं वो अपनी भेंट से बढ़कर उसे देना। It is all through the Bible. और ये सारी बाइबल में हम देख सकते हैं। Yes, it can be seen. Tithing, offering and extra giving is all through the Bible. और बाइबल में हम देख सकते हैं कि दशमांश को देना और भेंटों को देना और भेंटों से बढ़कर देना। Doing the right thing means following the biblical principles. और सही बात करना मतलब बाइबल के वचनों के अनुसार चलना। Tithing, दशमांश देना, getting out of debt, और इसका अर्थ है कि अपने कर्जों से मुक्ति पाना, not manipulating your money. अपने पैसे को इस तरह खराब नहीं करना, Gift is giving to God. और जो उपहार है वो परमेश्वर को दिए जाने It is in चाहिए। the Bible. ये बाइबल में लिखा है, I am not here to tell you और यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा you cannot outgive God. और आप परमेश्वर किस प्रकार देते हैं। You cannot outgive God in anything in your life. और आप अपने जीवन में इस प्रकार कुछ नहीं कर सकते। I am here to tell you मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, you have to give it to the Lord first. आपको सबसे पहले परमेश्वर को देना चाहिए। If you need blessing in your life, यदि आप अपने जीवन में आशीष को देखना if चाहते you हैं, if you need multiplication in your life, और यदि आप अपने जीवन में बहुतायत को देखना चाहते हैं, great things will happen. और महान बातें होंगी। You believe the biblical principles. यदि आप बाइबल के सिद्धांत पे विश्वास करते हैं, God can do great things in your life. परमेश्वर आपके जीवन में महान बातों को करेंगे। When you put God first in your life, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, my friend, there is going to be abundance of blessing happening in your life. और मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीषों को उंडेल देगा। God is not interested in your money. परमेश्वर आपके पैसे में दिलचस्पी नहीं रखते, The 1,000 cattle in the hills belongs to God. और सारी चीजें परमेश्वर से संबंध रखती हैं। But God is only looking at your heart. लेकिन परमेश्वर केवल आपके हृदय के देखते हैं। How is your heart condition before God? और परमेश्वर के सामने आपके मन की दशा कैसी है? Are you able to surrender everything to God? क्या आप परमेश्वर को सब कुछ समर्पित करना चाहते Are हैं? you willing to give everything to the Lord Jesus Christ? और क्या आप इच्छा करते हैं कि आप सारी चीजों को परमेश्वर को समर्पित कर दें? Here we saw that small boy. और यहाँ पे हम एक छोटे लड़के को देखते He हैं, had 5 loaves and 2 fishes. और उसके पास केवल 5 रोटी और 2 मछली थी। He did not have it for himself. और उसने उसे अपने लिए नहीं रखा, He gave it to the Lord. उसने उसे परमेश्वर के हाथों में दे दिया। What did the Lord do? और परमेश्वर ने उसे क्या किया? He was able to bless it and it multiplied in the hands of the और वो disciples. इसे योग्य हुआ कि इसे बहुतायत से आशीषित दे सके। God wants to multiply things in your life, my friend. परमेश्वर आपके जीवन में चीजों को बहुगिणित करना चाहता है मेरे दोस्तों। He wants to bless you socially, physically, materially. और परमेश्वर आपको संसारिक रूप से, आत्मिक रूप से और चीजों के रूप से आशीषित करना This चाहता है। morning I exhort you that you give everything in the hands of God. और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सारी चीजों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, Great abundance will flow through your life. और आपके जीवन से बहुतायत की
आशीषें उमड़ेगी। Yes, God wants you to be a channel of blessing. परमेश्वर चाहता है कि वो आपको आशीष का स्रोत बनाए। A stingy person cannot see increase in their life. और जो कंजूस व्यक्ति है वो अपने जीवन में बहुतात को नहीं देख Whatever सकता। they have, they lose in their life. और जो कुछ उनके पास होता है वो अपने जीवन में उसे खो देते हैं। But the Bible talks about a cheerful giver. और परमेश्वर और बाइबल जो खुशी से देने के बारे में बात The करती more है। abundantly you give, और जैसे ही आप बहुतात से देते the हैं more you give it to the Lord, और जैसे ही आप चीजों को परमेश्वर को देते हैं you'll see abundance flowing in your life. और आप अपने जीवन में आशीषों की बहुतात को देखते हैं। My friend, this morning I want to exhort each one of you, और आज की सुबह मेरे दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, everyone who's listening to this word today, और आज जो इस वचन को सुन रहा है, I want each and every one of you in your family to be blessed this morning. और मैं चाहता हूँ आप में से हर एक का परिवार आशीष पाए। Great provision will be provided for the Lord in your family. परमेश्वर के द्वारा आपके परिवार की हर एक जरूरत उपलब्ध की जाए। Yes, blessing will be knocking at your door this morning. और आशीष आज आपके द्वार पे खटखटा रही है। Great things will be happening in your life और महान बातें आपके जीवन में होने को है when you surrender your life to the Lord Jesus और Christ. जब आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को When समर्पित you कर देंगे yield your life to Him, और जब आप अपने जीवन को उसे सौंप देंगे when you give your life to Him, और जब आप अपने जीवन को उसके हाथों में दे देंगे see what can God do in your life. और देख सकते हैं कि क्या परमेश्वर आपके जीवन में कर सकते हैं। Here was a small boy. और यहाँ पे हम एक छोटे लड़के को देखते हैं। He could have been very selfish and he could not have given the 5 loaves and 2 fishes to the Lord. और वो वहाँ पे स्वार्थी हो सकता था ताकि अपनी रोटी को और अपनी मछली को परमेश्वर को ना दे, But he didn't hold it from the Lord. लेकिन उसे अपने पास नहीं रखा। See, even today we are talking about that small boy और आज भी हम उस छोटे लड़के के बारे में बात करते because हैं he gave everything he had to the Lord Jesus Christ. क्योंकि उसके पास जो कुछ था उसने परमेश्वर के हाथों में दे दिया। This morning God wants you to give everything to Him, आज सुबह परमेश्वर आपको हर एक चीज देना चाहते हैं, not because God needs it, my friend. क्योंकि इसलिए नहीं कि परमेश्वर को इसकी जरूरत है। No, God doesn't need it. परमेश्वर को किसी बात की जरूरत But नहीं, He intends to bless you this morning. लेकिन उसकी सोच यही है कि वो आपको आशीष दे। He wants to see great multiplication having in your life. वो आपकी चीजों में बहुगुणित को देखना चाहते The हैं। power of God will engulf you this morning परमेश्वर का आत्मा आज इस रीति से कार्य करने पाए। when you obey the word of God. और जब आप परमेश्वर के वचन की आज्ञा को मानते हैं, Power will flow through your life. परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन से बहने पाएगा Great blessing will flood through your life. और आपके जीवन से बड़ी आशीषें बहने पाएंगी। The power of God will fill you and overflow you in your और life. परमेश्वर की आत्मा आपको भर के आप में से बहने लगेगी। How many of you want to live in abundance? और कितने आप में से चाहते हैं बहुतायत के जीवन को जीना? How many of you want to live in prosperity? और कितने हैं जो चाहते हैं अपने जीवन को उन्नति में जीना? This morning, आज इस सुबह में commit your life to God. परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दे दीजिए Surrender your life to the Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह को अपने आप को समर्पित कर The दीजिए। anointing power of God will fill you this morning. और आज परमेश्वर का अभिषेक आपको भर देगा The power of God will come over your life. और परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में उतरेगा The power of the Holy Spirit will flood you this morning. और पवित्र आत्मा की सामर्थ आप में कार्य करेगी You will not be the same again. और आप फिर से समान न रहेंगे You'll be a different person. और आप एक अलग व्यक्ति होंगे। Your life will change. आपका जीवन बदल जाएगा Your neighborhood will change. और आपका जो Neighborhood, आपको पड़ोसी, और आपका जो पड़ोसी बदल जाएगा everything around you will change. और आपके इर्द गिर्द सारी चीजें बदल जाएंगी। You know, because क्योंकि आप जानते हैं the power of God is upon your life. परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के ऊपर है। This morning, God is calling you, my friend. आज इस सुबह में मेरे प्रिय मित्रों आपको परमेश्वर बुला रहा है Don't hold anything back from God. और परमेश्वर से अपनी चीजों को छुपा के ना रखें। If you want to live in abundance, और यदि आप बहुतायत में जीना चाहते हैं then surrender
everything to the Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह की सारी चीजों को उसके हाथों में सौंप दें Expect a great blessing in your life. और उससे आशा करें कि वो आपके जीवन में महान बातों को You know, करे। every morning I pray, और हर सुबह मैं प्रार्थना करता हूँ, Lord bless me, परमेश्वर मुझे आशीष दीजिए, fill me with your power. मुझे अपनी सामर्थ्य से भरिए, I need your provision और मैं आपकी उपलब्धि चाहता हूँ, and I need the miraculous happening in my life. और मैं चाहता हूँ कि आपके चमत्कार मेरे जीवन में होने When you पाए। pray this prayer, और जब आप इस प्रार्थना को करेंगे, you can expect great things to happen through your life. और आप आशा कर सकते हैं कि महान बातें आपके जीवन में हों। God wants to change your life and the life of your family. और परमेश्वर आपके जीवन को और आपके परिवार के जीवन को बदलना He चाहते wants हैं, to see great things happening in your life. और वो चाहते हैं कि महान बातें आप में होने पाएं। Will you come to the Lord this morning? और क्या आप आज इस सुबह परमेश्वर के पास आएंगे? Are you ready to hand over your life to the Lord Jesus Christ? और क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में देने के I लिए? pray that each and every one of you hand over your life to the Lord Jesus और Christ. मैं आप हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, Expect a great miracle to happen in your life. और उससे आशा रखें कि वो आपके जीवन में बड़ी बातों को करेंगे। God wants to bless you, my friend. परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं मेरे दोस्तों, That is the will of God for your life. और यही परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन के लिए। When you give first thing to God, everything is going to happen in your life. और जब आप पहली चीजें परमेश्वर को देंगे तो हर बातें आपके जीवन में अच्छी होंगी। Always remember, और हमेशा याद रखें, first portion always belongs to God. और पहला भाग परमेश्वर के साथ संबंध रखता है। Do not rob God from the first portion in your life. और परमेश्वर को पहला भाग ना देकर इस प्रकार ना लूटें। Every area of your life, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में, not only in money, केवल पैसे में ही नहीं, in socially, in every area of your life, संसारिक रूप में हर आपके जीवन के क्षेत्र में, when you give the first place in your life to God, there is going to be a definite blessing coming on your way. और जब आप अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं तो ये अवश्य है कि आशीषें आपके जीवन में आएंगी। May God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you and we praise you for your word today. स्वर्गीय पिता, आज के इस सुंदर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते We हैं, pray, the Lord, that the word may work in the hearts of the people today. और हम प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन लोगों के हृदय में कार्य करने पाए। Lord, I pray that they may surrender their life today into your holy hands. परमेश्वर, मेरी ये प्रार्थना है कि आज ये अपने जीवनों को तेरे पवित्र हाथों में सौंप दें, And let them give the first thing in their life to you. और ये अपने जीवन की पहली बातों को आपको देने पाएं, Because you purpose to bless your people this morning. क्योंकि आपका ये उद्देश्य है कि आप अपने लोगों को आशीषित Thank you करें। for listening to our prayers. परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. If you have been blessed with this word, और यदि आपने आज के वचन के द्वारा आशीष पाई है तो you can call on us in these two numbers. और आप इन दिए गए 2 नंबरों पे हमें कॉल कर We सकते are हैं, always praying for you. और हम हमेशा आपके लिए प्रार्थना May करेंगे। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Amen. To be like Jesus, to be like Jesus, all I ask, to be like Him, all through life's journey, from earth to glory. All I ask, to be like Him, to be like Jesus.